चलो, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जनरल डिस्कशन किया, जिसमें फ्लो और नॉन फ्लो प्रोसेसेस थी। फ्लो प्रोसेस मतलब कि जब ओपन सिस्टम होता है तब, और नॉन फ्लो प्रोसेस जब आपका क्लोज सिस्टम होता है तब। ओके, और हमको ये पर्टिकुलर सेक्शन में नॉन फ्लो प्रोसेसेस देखनी है, और जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक एंड थ्रोटलिंग प्रोसेसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमने देख ली, जिसमें आपको डायग्राम पता है ना। पीवीटी रिलेशन देखा दोनों में। वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, और हीट सप्लाई जो होती है वो dq इज इक्वल टू du होती है, बिकॉज वर्क डन 0 है ना। और इंटरनल एनर्जी का चेंज u इज इक्वल टू cv इंटू dt, isn't it? उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई जब भी आप हीटिंग देते हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे, लाइक आपका घड़ा है, पॉट है, उसके अंदर पानी भरा है और आप गर्म कर रहे हो, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेरिक, और आपका टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम जो है वो पानी का डिक्रीज होता है, isn't it? चलो, सो पीवीटी रिलेशन देखा, वर्क डन वाला इक्वेशन देखा, हीट सप्लाई का जो हीट सप्लाई जो हो रहा है वो हमने देखा, isn't it? इंटरनल एनर्जी का चेंज देखा, वो सेम एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था। नाउ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है उसको आइसोथर्मल या फिर हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोबैरिक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आइसोबैरिक था ना, ये कुछ और था। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक क्या कुछ और, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ને આના માટે આઇસોબેરિક એ પ્રેશર માટે. हाँ, प्रेशर માટે आइसोबैरिक, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર के लिए આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ। હવે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ કે જેની અંદર તમારું ટેમ્પરેચર સિસ્ટમનું કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હોય એને કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ કહેવાય, બરોબર। એના એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, એક્ઝામ્પલ્સ વિશે ખરેખર ડિસ્કસ કરવા જેવું છે, બીકોઝ આ એક એવી પ્રોસેસ છે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ જે તમારા ફ્યુચરમાં વારે વારે આવશે, બરોબર। અને આવા અમુક પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ એવા આપ્યા છે જે તમારે ડિટેલ સ્ટડીમાં આવશે। તો પહેલું વર્ડ છે કન્ડેન્સેશન। કન્ડેન્સેશન ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ। કન્ડેન્સેશન શું છે તમને ખબર છે? કોઈને ખબર છે બેમાંથી કન્ડેન્સેશન શું છે? ના સર. ઓકે, તો કન્ડેન્સેશન એટલે તમારું પાણીનું ડ્રોપલેટ જે છે અથવા તો વેપર છે, વેપર એટલે ખબર ને તમને, વાયુ, વાયુ કહેવાય, ગેસ। ઓકે, હા સર. એ ગેસ પોર્શન જે છે એ લિક્વિડ પોર્શનમાં કન્વર્ટ થાય, એને કહેવાય કન્ડેન્સેશન। ક્લિયર, સમજા? તો આ તમને બેઝિકલી 3 ફેઝ ખબર છે, સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ। તો અહીંયા શું થાય છે, ગેસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇનટુ લિક્વિડ व्हेन કન્ડેન્સેશન ઇઝ હેપન। ઓકે, કન્ડેન્સેશન થાય ત્યારે ગેસમાંથી લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય છે, તો થયું શું, ફેઝ ચેન્જ થયો ને, બરોબર। તો આ એક એક્ઝામ્પલ થયું તમારું કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરનું। અને જ્યારે આવી રીતના કન્ડેન્સેશન થશે ત્યારે ટેમ્પરેચર તમારું કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, બરોબર, ખાલી ફેઝ ચેન્જ થશે, ફ્રોમ ગેસ ટુ લિક્વિડ ઓર લિક્વિડ ટુ સોલિડ ઓર લિક્વિડ ટુ ગેસ, એવી રીતે। એટલે સેકન્ડ સર એક્ઝામ્પલ, હા હેલો બોલો આયુષ, હા બોલો ત્યારે આયુષ। સર આઈનું જે ટેમ્પરેચર હશે સર એ લિક્વિડનો ટ્રાન્સફર થતા તો લિક્વિડનો બી એ જ ટેમ્પરેચર હશે ને? હા હા હા, ઓકે સર. હું તમને પછી એક એક્ઝામ્પલ આપું, બરોબર, છેલ્લે એકચ્યુઅલી નીચે આવી જ જશે, હું તમને આ બધું પતશે ને ત્યાં સુધીમાં બધા એક્ઝામ્પલ ને બધું મેં મૂકી જ દીધું છે। ઓકે, ચલો, સેકન્ડ પોઈન્ટ, all the reactions going on in the refrigerator are isothermal as a constant temperature is maintained in it। मतलब કે રેફ્રિજરેટર એટલે શું, તમારું ફ્રીઝ, ઘરનું ડોમેસ્ટિક રેફ્રિજરેટર કહેવાય છે। એમાં બધી પ્રોસેસ જે છે એ આઇસોથર્મલ થાય છે, બરોબર, મતલબ કે જ્યાં એમનું કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર રહે છે। મતલબ ફ્રીઝમાં તમારા બે પોર્શન આવે, અત્યારે તમને ડીપમાં નહીં ખબર હશે, પણ એક કન્ડેન્સર આવે અને બીજું ઇવેપોરેટર આવે, બરોબર। તો એની અંદર કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ થાય, અને એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર વખતે ઇવેપોરેટરની અંદર તમારું જે લિક્વિડ છે ગેસમાં કન્વર્ટ થાય, અને કન્ડેન્સરની અંદર જે તમારું ગેસ છે એ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય, બરોબર, ટેમ્પરેચર ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ રહે।
આ વસ્તુ ત્યારે જ્યારે તમે 5th સેમેસ્ટરમાં ભણશો ને ત્યારે ડિટેલમાં આવશે. તમારે વિડીયો જોવા હોય ને તો હું તમને મોકલી આપીશ, અથવા તમે જાતે પણ સર્ચ કરી શકો છો, હું તો મોકલીશ જ. બરોબર, ઓકે. થર્ડ પોઈન્ટ, the melting of ice at 0 degree is an example of isothermal process. ओके मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है. मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब બરફનું પીગળવું. ઓકે, હવે બરફ પીગળશે તો શું થશે, બરફ છે એ સોલિડ હોય, બરોબર ને, 3 ફેઝ, આમાં સોલિડ હોય બરફ, એ પીગળશે એટલે પાણી થઈ જશે, isn't it? તો અહીંયા શું થયું, સોલિડ ટુ લિક્વિડ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થયું. અને જ્યારે આ થાય એટમોસ્ફિયરિક ટેમ્પરેચર પર, સોરી એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર પર, ઓકે, ત્યારે 0 ડિગ્રી હશે સોલિડ આઈસ, અને તમારું વોટર જે છે એ બી 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હશે. ક્લિયર? તો આ એક એક્ઝામ્પલ થયું which is a phase change process. આ એક phase change process થઈ, solid to liquid, temperature constant. Okay. Fourth one, boiling of water is an example of isothermal process. હવે જુઓ, સોલિડ થી લિક્વિડ તો બની ગયું, બરોબર. હવે ધારો કે હું અગેન એક કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર પર પાણીને ગરમ કરું છું, બરોબર, તો એ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર આવશે ને, 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર, ત્યારે એ ધીરે ધીરે વેપર એટલે કે ગેસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થવા લાગશે. શેમાં? ગેસ ફોર્મમાં. સમજાય છે? અને એ ફેઝ ચેન્જ થશે પણ એનું ટેમ્પરેચર સેમ રહેશે. કેટલું રહેશે? 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કેટલું રહેશે? 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ક્લિયર? તમારે આને પ્રેક્ટિકલી કરવું હોય તો બી તમે કરી શકો. આઈ થિંક મેં તમને બતાવ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો. મેં ખબર મારું થર્મોકપલને શું કહેવાય કેલિબ્રેશન કરતો હતો ત્યારે પાણીને ગરમ કરેલું અને ટેમ્પરેચર તમને બતાવ્યું હતું, બરોબર, એ વાળું હું તમને કહું છું. એ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર રહેશે. So the temperature of boiling water stays same under the constant pressure. मतलब કે પ્રેશર જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ હશે ત્યારે ટેમ્પરેચર એનું કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, બરોબર. That is the atmospheric pressure in your daily life. मतलब જે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર છે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર રહેશે એવું કહે છે. ઓકે, વાંધો નહીં. અને બાજુમાં એક છેલ્લે નોટ લખી છે મેં. નોટ શું છે? Any phase change process is an example of isothermal process. Most important note, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ છે, બરોબર. શું છે? એની ફેઝ ચેન્જ પ્રોસેસ. કોઈ પણ ફેઝ ચેન્જ પ્રોસેસ થાય, સોલિડ ટુ લિક્વિડ હોય, લિક્વિડ ટુ ગેસ હોય, ગેસ ટુ લિક્વિડ હોય કે લિક્વિડ ટુ સોલિડ હોય, બરોબર, એ બધી પ્રોસેસ આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ હોય. આ આઈડિયલી વાત કરું છું, આઈડિયલી. ઘણીવાર રિયલમાં નહીં પણ હોઈ શકે. ઓકે, ચલો, ક્લિયર? સર હા બોલો. સર પણ એમ સર જો એ બરફ હોય સર એ પાણીમાં કન્વર્ટ થાય સર, તો એમ જોવા જઈએ સર એના જો એ આઇસોલેટમાં નહીં હોય સર તો એનું ટેમ્પરેચર ઘટી વધી શકે ને સર? હા, આઇસોલેશનમાં નહીં હોય, મતલબ આઇસોલેશન મીન્સ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર એક પર્ટિક્યુલર પ્રેશર પર નહીં હશે, તેનું ટેમ્પરેચર વધી ઘટી શકે છે. હા, બને એવું. બરોબર. હા. ચલો, આયુષ પટેલ ને કોઈ ડાઉટ? આયુષ પટેલ, पटेल आयुष, ओके, नो सर, ओके गुड. चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना. अभी आपको देखो डायग्राम की बात करते हैं. डायग्राम की बात हमने नहीं की थोड़ी, तो पीवी डायग्राम देखो उसका और टीएस डायग्राम देखो. क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब आप टीएस डायग्राम ध्यान से देखोगे तो 1-2 प्रोसेस ऐसे दिखाई गई है. सो कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज, ओके. और जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तब पॉसिबिलिटी है कि भाई आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, isn't it? जैसे अभी आयुष परमार बता रहा था उस हिसाब से. ओके, चलो. और वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि अगर मैं पानी को आइस में कन्वर्ट करूंगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? अगेन क्वेश्चन इज दैट अगर मैं पानी को आइस में कन्वर्ट करता हूं तो उसका जो वॉल्यूम है, कद मतलब, वो बढ़ेगा कि कम होगा? isn't it? आप ये मुझे बताओ. चलो आगे बढ़ते हैं. उसका रिलेशन P1 V1 पीवीटी रिलेशन के बारे में बात करें अगेन, जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किया था, तो
तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कुछ नोटेशन किया है दैट P1 V1 T1 क्या है वो भी आपको पता है ना, और P2 V2 T2 क्या है। ओके चलो, स्टेट 1 और स्टेट 2। और अगेन सपोज m kg of ideal gas is heated at constant temperature from state 1 to final state 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये जनरल इक्वेशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो अभी क्या बचा, सिर्फ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, P को एक साइड लाता हूँ, V को एक साइड लाता हूँ, सो P1 बाई P2 और V1 राइट साइड जाएगा, सो V2 बाई V1। Isn't it clear? Now work done during the constant pressure process। वर्क डन क्या हो रहा है, विच इज TdV। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो वर्क डन में टेम्परेचर कहीं पे नहीं है, मैंने आपको बोला था याद है। यहाँ पे वर्क डन में पर्टिकुलरली टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हम उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा हम कैसे करेंगे? आपको पता है हमने किया, पहले हमने किया। पीवी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, पीवी को और क्या बोल सकते हैं हम, बताओ। पीवी को हम क्या बोलेंगे, MRT, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT। तो ये P2 V2 कन्वर्ट हो जाएगा MRT2 में, और P1 V1 MRT1 में कन्वर्ट हो जाएगा, isn't it? तो हो गया हमारा काम। तो जैसे हमने कांस्टेंट प्रेशर में किया था उसी तरह ये स्टेप्स है, PV2 माइनस V1, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 है, सो P2 V2 माइनस P1 V1 कर दिया मैंने, और ये दोनों को हम PV लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, MRT2 वाला करेंगे, चलो। तो वो उससे भी होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, आप ध्यान से देखोगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू PV है ना। तो यहाँ से मैं P को, अगर मुझे P1 V1 के टर्म में लिखना है तो इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी अभी क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू P1 V1। ओके, PV इज इक्वल टू P1 V1। तो P को अलग करते हैं तो ये V नीचे चला जाएगा, सो अल्टीमेटली क्या होगा आपका, P1 V1 डिवाइडेड बाई V। क्लियर? तो हो गया आपका, देखो यहाँ पे ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यह हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV, ये था ना हमारे पास, तो वहां पे हमने क्या लिखा, P की जगह पे P1 V1 बाई V लिखा। चलो, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं आगे जाऊंगा, बीच में कुछ भी डाउट हो तो मुझे रोक लेना, है ना। चलो, तो यहां तक क्लियर। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है डीवी का, तो जो वी वाले टर्म है, सिर्फ वी वाले, उसको मैं उसके अंदर रखूंगा, बाकी सबको बाहर निकाल दूंगा। तो P1 V1 को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/V इंटू डीवी। ओके, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता होगा दैट 1/V डीवी जो होता है वो log ऑफ V होता है। क्या होता है, log ऑफ V, एंड दैट log ऑफ V फ्रॉम 1 to 2 है ना, 1 to 2 है, सो log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1 होगा। ओके, सो P1 V1 log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। अभी ये log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1 के बीच में ये माइनस है, तो ये V2 और V1 को हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो उसके ऊपर से हमने एक स्टेप लाया, P1 V1 तो है ही, लेकिन log ऑफ V2 बाई V1। क्लियर? किलो न्यूटन इंटू मीटर। चलो, उसके बाद वर्क डन, P1 V1 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ P1 बाई P2। देखो ये कहां से आया, V2 बाई V1 जो है वो P1 बाई P2 आया। कहां से आया, किसी को याद आ रहा है? हमने एक लिखा था यहाँ पे P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। हाँ बोलो 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 बोलो। P1 divided by P2 is equal to V1 divided by V2 is equal to sir. यस यस यस, ये वाला ये वाला हाँ इसके सर, ऊपर से हमने ये लाया था, देखो ये वाला। तो V2 बाई PV V1 next, इज इक्वल टू P1 बाई P2 है। गुड गुड गुड, हाँ गुड गुड गुड। तो यहां से मिला हमको log ऑफ P1 बाई P2। ओके, अभी जैसे मैंने बोला P1 V1 जो है उसको हम MRT1 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो है ये सभी मैंने रेड लाइन वाले रेड अक्षर में लिखा है, टाइप किया है, वो सभी आपके इक्वेशन है। अभी आपको अपने एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल आप गिन रहे हो तो उसके हिसाब से इसको यूज करना है, isn't it? तो ये हो गए आपके चारों इक्वेशन,
P1 V1 को मैंने MR T1 में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो उसको मैं P1 by P2 के टर्म में भी लिख सकता हूँ, जो मैंने लास्ट इक्वेशन लिखा है वो वाला। और ये V2 by ये जो वाला है P1 V1 विथ log ऑफ V2 by V1, उसको भी मैं MR T1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो ये उस हिसाब से चारों इक्वेशन बन रहे हैं आप। चलो, कुछ भी डाउट हो तो बताओ, ध्यान से देख लो। पटेल आयुष, आयुष परमार, 1 मिनट देख लो ध्यान से दोनों पीपीटी में। पहले से स्टार्ट करता हूं, अपने हिसाब से देखो 2 मिनट के लिए। आगे ओके, मैं आगे बढ़ू? हाँ सर, क्लियर। ओके, पटेल आयुष, आगे बढ़ू मैं? आयुष नो अवाज नहीं આવ્યો। हाँ सर। ओके चलो, तो हमें हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, वर्क डन देख लिया हमने। तो हीट ट्रांसफर आता है तो अगेन हम अप्लाई दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका कॉमन इक्वेशन ये है। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है कि भाई आपका जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम के। ओके, तो उस हिसाब से तो अल्टीमेटली आपका dq इज इक्वल टू dw आएगा। ओके चलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखी है, देखो उसके हिसाब से, as the temperature remain constant during the process of ideal gas, its internal energy remains constant throughout the process। तो ये एमसीक्यू के लिए, देखो मैं पहले भी बोला था और मैंने ये किया भी है कि मैं जितनी भी नोट में लिखता हूँ उसके उत्तर से एमसीक्यू आते हैं। जीपीएससी हो, है ना, या फिर गेट हो, ये सभी एग्जाम के एमसीक्यूज आते हैं। मुझे सभी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, तो यहाँ तक आपका क्लियर? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मैं आपको दिखाता हूं, पहले उसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक, सो ऐसी प्रोसेस जहां पे सिस्टम जो होता है, यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेशन के थ्रू ही देखते हैं सीधा। चलो, प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। कोई मुझे बताएगा ये क्या लिखा है? हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, इसका मीनिंग क्या है? हाँ सर। इसका मीनिंग क्या है? છે ને સિસ્ટમ અને જે એટમોસ્ફિયર है ને એ બંને વચ્ચે છે ને હીટ ટ્રાન્સફર નથી થતું સર। मतलब हीट ट्रांसफर નથી થતું, मतलब કોઈ એક્ઝામ્પલ અથવા મેથેમેટિકલી કંઈ કેવું હોય તો મારે એક્ઝામ્પલ થી સમજાવો, અથવા પછી મેથેમેટિકલી, અથવા કંઈક તમારી રીતે કંઈક કેવું હોય તો। સારું, હું કહું, બંને કહું તમને। Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખી શકાય આને? લખાય કે ના લખાય? हेलो, हाँ सर। है ना। Q इज इक्वल टू 0 मतलब શું થયું? હીટ ટ્રાન્સફર જે છે તમારું એ 0 થયું, કારણ કે Q हाँ શું છે? એ તો છે ને હીટ સપ્લાઈડ કે હીટ રિમૂવ જે હોય તે। એક્ઝામ્પલ આપો, તમારું થર્મોસ, આપણે આઈસો 3 પ્રોસેસ જોયેલી, બરોબર? ઓપન સિસ્ટમ, एक्चुअली સિસ્ટમ ઓપન સિસ્ટમ, ક્લોઝ સિસ્ટમ અને આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ।
હા સર સિસ્ટમમાં ઇન્સ્યુલેશન હતું બરોબર, જેની અંદર કોઈ હીટ બહાર કે અંદર નહીં જતી હતી. સો હા ઇટ ઇઝ this kind of process. है ना? આ આઇસોલેટેડ चलो સિસ્ટમ છે ને સર? हाँ हाँ શું આ આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ છે. હા આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ ની એક પ્રોસેસ થઈ ગઈ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. આની અંદર બીજું હા ઘણું છે, ફક્ત આટલું નથી બરોબર. આ એકચ્યુઅલી બહુ ડીપ હા પ્રોસેસ છે. આની અંદર વર્ક થાય છે ટ્રાન્સફર. હા વર્ક ટ્રાન્સફર થશે. ગુડ 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 ગુડ. હા તો મેં લખ્યું છે, જુઓ ચાલો આપણે આગળ હા વધીએ. સર. यस 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 गुड गुड. तो यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि भाई सिस्टम के अंदर आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा. ओके उसको मैंने चौकड़ी की है. और एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, मतलब कि वर्क जो है वो सिस्टम में होगा. ओके तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. अभी ऐसी दो प्रोसेसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, विच इज एक्सपांशन प्रोसेस एंड कंप्रेशन प्रोसेस. देखो पहली है एक्सपांशन प्रोसेस और दूसरी कंप्रेशन प्रोसेस. एक्सपांशन प्रोसेस मींस क्या कि किसी चीज को आप एक्सपांड कर रहे हो, है ना. एक्सपांड मींस उसको सपोज बलून है, सपोज मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, बलून है वो अपने आप, मतलब हम फुग्गा फुला रहे हैं तो एक्सपांड हो रहा है. सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एक्सपांशन प्रोसेस. कंप्रेशन प्रोसेस, आपका कंप्रेशर आता है, उसमें एयर जो होती है वो कंप्रेस होती है ना. तो इट इज अ कंप्रेशन प्रोसेस. चलो तो ये दो प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं. तो एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. ओके मैं इसको पिस्टन सिलेंडर असेंबली के टर्म में बताता हूँ. चलो तो यहाँ पे आपका पिस्टन है, ये वो बाहर वाला ये सिलेंडर था, ये आपका पिस्टन है पूरा. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब गैसेस है. क्या है, गैसेस है. तो ये गैसेस क्या करते हैं कि जब भी इस पे प्रेशर बढ़ जाता है तब ये गैसेस ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करते हैं. isn't it? एक्चुअली पुल बोलते हैं इसको, मतलब बाहर की ओर ढकेलते हैं, पुल करते हैं. तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ. क्या हुआ, गैस का एक्सपांशन हुआ. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. ये गैस का एक्सपांशन हो गया. क्यों एक्सपांशन हुआ, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा. अभी पहले वॉल्यूम इतना इतना था, फिर पिस्टन यहाँ पे आएगा तो वॉल्यूम इसका इतना हो जाएगा. समझ रहे हो. तो इसका एक्सपांशन हुआ. तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम में जो गैस है वो वर्क दे रहा है सराउंडिंग को, सराउंडिंग को वो वर्क दे रहा है. इसकी वजह से क्या होगा, आपका साथ घूमेगा. दैट इज वाई यू रिटन दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. अभी कंप्रेशन प्रोसेस का देखते हैं क्या होगा. आपको अभी समझ में आ गया होगा कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है. कंप्रेशन प्रोसेस में पिस्टन नीचे आता है और गैस कंप्रेस होता है. तो गैस जो है वो सिस्टम है आपका, है ना. तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है बाय द सराउंडिंग. isn't it? तो in this type of process work is done on the system by the surrounding. तो अभी इसके इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे कि जब भी एक्सपांशन होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी. क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि आप सिस्टम से कुछ वर्क दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है. और जब आप कुछ लेते हो तो ऑब्वियसली बढ़ता है. देना, हम देते हैं तो कम होता है, लेते हैं तो बढ़ता है. isn't it? It's kind of this thing. चलो क्लियर. मैं आगे बढ़ू, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम. मैं 3-5 सेकंड वेट कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ओके चलो तो ये हो गया कुछ बेसिक एग्जांपल एंड उसके प्रोसेसेस. अभी ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके दो टाइप्स है जनरली. उसमें से पहला जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और दूसरा जो है वो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. तो ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं और फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं. लेकिन आप फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो इसको जनरली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही बोलेंगे. isn't it? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है. क्या हमारे यूनिवर्स में रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, वो बताओ. हेलो. द क्वेश्चन इज दैट रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे
पृथ्वी पे पॉसिबल है कि नहीं है? पटेल आयुष, आयुष वर्मा। आयुष का आवाज नहीं आया मुझे, स्पीकर ऑन किया लेकिन। बोलो। तो हमारे यूनिवर्स में ऐसी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो गई? आइडियल प्रोसेसेस हो गई, जो यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलो उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और डीप में थोड़ा। तो द प्रोसेस इन विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंट्रोपी जो है वो आपकी कांस्टेंट रह रही है। ओके, एंट्रोपी आपको पता है एस, है ना? तो ये एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। ओके, हेलो, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ सर। हाँ, आपको मे बी मतलब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? एंट्रोपी का कंसेप्ट में हम बहुत डीप में नहीं गए, मुझे भी पता है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि उसमें डीप में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एंट्रोपी का कंसेप्ट बहुत डीप है एक्चुअली, है ना? चलो, तो ds is equal to 0. So what are the conditions for process to be an isentropic process? मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पे कि नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये तो भाई आइडियाबेटिक प्रोसेस का ही हो गया कि भाई ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब Q इज इक्वल टू 0, तो ऐसी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड वन, द प्रोसेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। देखो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। अभी मुझे बताओ, किसी भी जगह पे फ्रिक्शन नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है? आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, पाइप के बारे में बात कर लो, कहीं पे आप चल रहे हो, टायर घुमा रहे हो, है ना? हाँ, फ्रिक्शन तो बड़ी जगह पर है। यस, फ्रिक्शन इज एवरीवेयर। ओके, बड़ी सो प्रोसेस माय फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन। प्रोसेस। हाँ, बोल बोल आयुष, बोल। बड़ी ओके, प्रोसेस माय फ्रिक्शन। હા તો ફ્રિક્શન બધે જ હોય, અને એટલા માટે આ ફ્રિક્શનલેસ પ્રોસેસ યુનિવર્સમાં પોસિબલ નથી, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આઈ હેવ કોલ્ડ ઇટ એઝ એન આઈડિयल प्रोसेस, है ना? चलो, तो ये आइडियल प्रोसेस। तो वर्क मस्ट बी डन बाय द गैस इन द एक्सपेंशन प्रोसेस, जो हमने देखा ऑलरेडी कि भाई एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस जो होता है, मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर का जो होता है गैस, वो वर्क देता है। और कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा कि गैस को वर्क मिलता है, और उसकी वजह से वी कैन से दैट वर्क मस्ट बी डन ऑन द गैस, है ना? उसकी वजह से ही गैस कंप्रेस होता है। तो ये थ्री कंडीशन है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की। ओके, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मिनिमम 8 या 10 मार्क्स का तो आता ही है। ओके, हेलो ये 5-6 जो है ना, उसमें से 2 तो मिनिमम आएंगे, सर। 2 तो आपको मिनिमम आएंगे। हाँ, बोलो बोलो। પેલું થર્ડ વાળું સમજાય છે ને સર? કયું? થર્ડ થર્ડ પોઈન્ટ? વાળું. હા. આપણે પહેલા જોયું ને, એ જ છે એક્સપાન્શન પ્રોસેસ અને કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ, બરોબર? એક્સપાન્શન પ્રોસેસ ની અંદર શું થાય? ગેસ જે છે એ સરાઉન્ડિંગ પર વર્ક કરે। સમજાવો હા. ફિગર દ્વારા, ફિગર થી સમજાવો। ઓકે, જો મેં આ પિસ્ટનની વાત કરી ને, આમાં શું થાય? નીચે તમારું ગેસ હોય, હવે આ જે ગેસ છે એનું પ્રેશર પહેલા વધારે હશે, એટલે ગેસ શું કરશે? પિસ્ટનને ઉપર તરફ ધકેલશે, બરોબર? એટલે જો એના લીધે શું થાય, પિસ્ટન ઉપર ધકેલાય એટલે આ ગેસ જે છે એનું વોલ્યુમ વધે, અને વોલ્યુમ વધે ને એને એક્સપાન્શન કહેવાય। પહેલા આટલું વોલ્યુમ હતું, હવે પિસ્ટન ઉપર જશે, ધારો કે અહીંયા આવી ગયું, બરોબર? તો વોલ્યુમ એનું અહીંયાથી અહીંયા સુધી થઈ ગયું, બરોબર? ગેસ હા, બોલો આયુષ। ગેસ થયું હે ને સર? તારો અવાજ કટ થયો, શું કીધું તે? એટલે સર ગેસના લીધે વર્ક થયું. હા, ગેસના લીધે વર્ક થયું। ગેસ ક્યાં છે? સિસ્ટમમાં છે, એટલે સિસ્ટમે વર્ક કર્યું એવું કહેવાય। વર્ક ઇઝ હા. ડન બાય ધી સિસ્ટમ, એટલે મેં લખ્યું હા છે। હા
વર્ક ડન બાય હવે આ કમ્પ્રેસર જેમાં પિસ્ટન ગેસની વર્ક ઉપર વર્ક થાય, ગેસની ઉપર. એટલે મતલબ સરાઉન્ડિંગ માંથી વર્ક આવે છે કોના હા પર? હા ગેસ. સમજી ગયો. હા હા હું તમને એનું એક્ઝામ્પલ આપું. ચલો તમે એક્ઝામ્પલ શું આપું? તમે પેલું આપણે સાયકલનો પંપ આવે, ખબર? સાયકલના પંપ શું છે? એક પિસ્ટન જેવું જ અરેન્જમેન્ટ હોય. એમાં તમે આમ નીચે દબાવો ને એટલે શું થાય? અંદર જે એર હોય ને એ કમ્પ્રેસ થઈ જાય, સમજો છો? અને એ પછી હા ટાયરમાં જાય. તો એ તમે વર્ક કર્યું, સરાઉન્ડિંગમાં તમે છો, તમે વર્ક કર્યું અને એના લીધે ગેસ જે છે એ કમ્પ્રેસ થયો તમારો, બરોબર? કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ. હા हाँ कंप्रेशर भी इनमें एग्जांपल है. हाँ हाँ चलो देखो अभी आप उसका टीएच डायग्राम देखो. पहले मैं आपको पहले टीएच डायग्राम बताऊंगा. ये वाला डायग्राम कैसे है देखा आपने? 1 to 2 प्रोसेस जो है उसका लाइन वर्टिकल है, मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 पे उसका जो एंट्रोपी रह रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना? और उसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसी कुछ सिस्टम है. ओके चलो, तो उसके ऊपर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं. अभी उसका इक्वेशन है dq इज इक्वल टू dw प्लस du. अभी देखो dq क्या है आपका? 0 है, आपको पता है हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रही है यहाँ पे. सो अल्टीमेटली आप 0 इज इक्वल टू dw प्लस du लिख सकते हो कि नहीं? अभी अभी थोड़ा ये जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपांशन वाला, वो थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. ओके चलो देखते हैं. यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अभी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी लिख सकते हैं, है ना? और डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल यू है उसकी वजह से हमने एम लिखा है. ओके, क्या स्मॉल यू होगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी तो हमको नहीं लिखना पड़ता. ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एम आर टी आपको पता है. अभी क्या करते हैं? ये जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं. देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपनी एक जनरल स्पीड से जा रहा हूं, आपको जहां पे डाउट लगे वहां पे मुझे स्टॉप करना. ओके चलो, तो मैं उसको डिफरेंशिएटिंग करता हूं ये इक्वेशन को. तो पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग करूंगा. देखो कैसे करते हैं मैं आपको बोलता हूं. डी ऑफ, पहले है पीवी. ओके, डी ऑफ पीवी इज इक्वल टू डी ऑफ एम आर टी. ओके, अभी हम क्या करेंगे? पहले P को कांस्टेंट करेंगे और V का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, V को कांस्टेंट करेंगे, P के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? ये लेफ्ट साइड वाला मिलेगा, P dV प्लस V dP. ओके, इसमें नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूं. ये डिफरेंशिएशन ऐसा होता है. और यहां पे राइट साइड में मास और ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है. तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ ऐसी वैल्यू का होगा जो कांस्टेंट नहीं है ना? जब प्रोसेस होती है आपके सिस्टम के अंदर और वो कांस्टेंट नहीं रहती है, उसी प्रोसेस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहाँ पे पी, वी और टी, ये तीन चीज ऐसी है जो कांस्टेंट नहीं रहती. ओके, ये सिस्टम में क्या कांस्टेंट रह रहा है? ये प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है, लेकिन एंट्रोपी तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं आपकी. ओके चलो, तो समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एम आर डी टी. ओके, हमने इसको डिफरेंशिएट. उसके बाद ये जो dt है उसको एक साइड करते हैं, तो mr जो है वो इसके नीचे चला जाएगा. ओके, तो उसके ऊपर से ये लिखा है pdv प्लस vdp बाई mr. उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो pdv है प्लस mcv dt इज इक्वल टू 0 था, वो कहां पे था? हमारा ये वाला. ओके, है ना? तो वहां से मैंने ये वैल्यू उठाई यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो dt आ रहा था उसको मैंने पुट ऑन किया, मतलब कि dt इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपका?
ये वाला पी डीवी प्लस वी डीपी डिवाइडेड बाई एम आर, उसको यहाँ पे पुट ऑन किया मैंने, यहाँ पे ये dt में, मतलब कि ये जो इक्वेशन है उसके यहाँ पे मैंने पुट ऑन किया। क्लियर? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद एम एम कैंसिल हो गया मेरा, तो अभी मेरा ये इक्वेशन आएगा। ओके, अभी आर को मैं इस साइड ले लेता हूं जिसको लसा बोलते हैं, तो डिवीजन में टोटल आर आएगा, है ना? तो ये आर इस साइड जाएगा, जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाने वाला है। ओके, तो अभी आपका क्या रह गया, यहाँ पे आ गया आर पी डीवी प्लस ये तो सेम ही आने वाला है, ये वाला तो ओके इज इक्वल टू 0। अभी आर की वैल्यू सीपी और सीवी के टर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ओके, आई होप कि आपको पता होगा। चलो, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई पी डीवी प्लस सीवी मल्टीप्लाई बाई दिस सेम। ओके, अभी ये सीपी जो है उसको मैं यहां अंदर ले गया। ओके, मतलब पी डीवी को मैं ये काउंस में ले गया, ऐसा किया। तो उसकी वजह से क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई बाई पी डीवी और सीवी मल्टीप्लाई बाई पी डीवी, मैंने काउंस निकाल दिया, कहने का मीनिंग ये है। और यहाँ पे सीवी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया काउंस के अंदर, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो सीवी पी डीपी सॉरी सीवी पी डीवी प्लस सीवी वी डीपी इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं, मोस्टली होगा कुछ ना कुछ। देखो ये सीवीपी डीवी और सीवीपी डीवी कैंसिल हो रहा है ना? तो अभी आपका ये दो बच गया, सीपीपी डीवी और सीवीवी डीपी। ये मैथमेटिकल स्टेप है, इस पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अभी क्या करते हैं, दोनों साइड जो आपका इक्वेशन है उसमें सीवी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे सीवी से, तो सीपी बाई सीवी आ जाएगा पीडीवी, और यहाँ पे सीवी से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये स्टेप में डिवाइड करेंगे तो ये सीवी कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, सीवी डिवाइड किया है तो ये आपका रह गया इतना। अभी सीपी बाई सीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा लिख सकता हूँ, ये भी आपको आई होप के पता होगा। आइडियल गैसेस में देखा था हमने, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ओके, चलो तो यहां तक हम आ गए। नाउ डिवाइडिंग दैट इक्वेशन विद द पीवी, मतलब अभी ये जो इक्वेशन था उसको अभी पीवी के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, कितना लेंथी है ना? चलो, तो उसको डिवाइड किया पीवी के साथ, तो पीवी के साथ डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर देखता हूँ। चलो, इसको भी पीवी के साथ और इसको भी पीवी के साथ, तो यहाँ पे पीपी कैंसिल होगा। एक मिनट मैं रेड पेन लेता हूँ। यहाँ पे पीपी कैंसिल हुआ मेरा और यहाँ पे वीवी कैंसिल। चलो, तो क्या रह गया, गामा तो था ही मेरा, नीचे वी रह गया और यहाँ पे डीवी तो था ही, वी कैंसिल हो गया, डीपी रह गया और नीचे पी था। ओके, तो ये चलो, ये स्टेप मैंने क्या किया, पी वाले को एक साइड ले लिया और ये मतलब कि ये जो पूरा था उसको मैंने राइट साइड ले लिया, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको मैंने राइट साइड ले लिया। तो इसको राइट साइड लूंगा और बीच में प्लस होगा, इजंट इट, और इधर भी प्लस है तो मेरा माइनस आएगा, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन है तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक, सो डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा डीवी बाई वी। चलो, तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लाया, अभी उसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड्स। सो डीपी बाई पी इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस गामा डीवी बाई वी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बोला था लॉग पी, डिवीजन में अगर कुछ भी वैल्यू है तो उसका लॉग हो जाता है ना? माइनस गामा, गामा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो अल्टीमेटली लॉग ऑफ वी। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करते हो, 5 मिनट बाकी है नो डाउट, हम खत्म कर लेंगे, तो लास्ट में लॉग सी लिखते हैं जिसको कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है ना, कई बार हम लिखते हैं। चलो, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, ये जो लॉग वी वाला है उसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो लॉग पी तो है ही, ये वाला लेफ्ट साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस गामा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग सी। ओके,
ये जो गामा है वो इसके घात में चला जाएगा, ओके, रेज टू हो जाएगा। सो log p प्लस log ऑफ v रेज टू गामा इज इक्वल टू log c, ओके। चलो, और यहाँ पे log ऑफ pv रेज टू गामा कहाँ से आया, बीच में p है और दोनों log है, तो p जो है वो v रेज टू गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में प्लस है, ओके। सो pv रेज टू गामा log ऑफ pv रेज टू गामा इज इक्वल टू log ऑफ c, ये तो वही रहने वाला है। यहाँ पे दोनों साइड log log कैंसिल कर दिया, है ना, तो रह गया आपका pv रेज टू गामा इज इक्वल टू c, विच इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। जहां पे आपका जो ये गामा होता है ना, उसका वैल्यू 1.4 होगा। क्या होगा? 1.4। वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो एडियाबेटिक इक्वेशन जो है वो ये हुआ आपका pv रेज टू गामा इज इक्वल टू c। देखो रेड पेन से लिखा है, तो नोट करके रखना, ओके। तो मेरा प्रोसेस मतलब ये पूरे प्रोसेस के लिए दो स्टेट थे, स्टेट 1 और स्टेट 2, है ना। तो उसको मैं P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू PV रेज टू गामा इज इक्वल टू C लिख सकता हूँ। बोलो, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपने मुझे रोका नहीं किसी भी जगह पे, कोई भी स्टेशन पे, तो आपको कोई डाउट हो तो बताओ, या फिर मैं फिर नो से डाउट। नो डाउट, अरे वेरी गुड वेरी कोई डाउट नहीं। गुड 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 गुड। आपको एक बार देखना हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर ले एक मिनट सर। हाँ, पूरा लेना है, एडियाबेटिक से लेना है। ली डेला है सर। ओके ओके, एक मिनट पहले से चालू कर दो, चलो। एडियाबेटिक प्रोसेस पहलू, 5 सेकंड वेटिंग, 5 सेकंड वेटिंग। आनु ले ली डोज। ले ली डोज। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तभी इक्वेशन आपको याद रखने पड़े, है ना। तो तब में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, देखेंगे हम, कुछ ना कुछ ट्रिक लेंगे। कुछ डाउट हो तो बताओ, वरना हम लेक्चर एंड करते हैं। जिसको डाउट नहीं है वो एंड कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, और एक बात वो ये बोल रहा था कि 15 तारीख को आओगे तो एक दो प्रैक्टिकल, पहले 2 प्रैक्टिकल लिख के आना, है ना। चलो चलो, मिलते हैं, बाय बाय।